Hello students, welcome to chemistry class. I am your chemistry teacher Sumit Mishra. Today we are dealing with the topic equilibrium. Equilibrium is a very important topic of class 11th. Equilibrium word explains the equilibrium point between reactant and product. In a chemical reaction, there is two types of reactions, reversible and irreversible reaction. Reversible reactions are equilibrium in nature and irreversible reactions are not in equilibrium condition. Reversible reactions proceeds in both the direction. So in this chapter we are talking about reversible reactions. When we talk about equilibrium, there are three kinds of equilibrium: physical, chemical and ionic equilibrium. So let us talk about physical equilibrium. When a liquid evaporates in a closed container, molecule with relatively high kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase and number of liquid molecule from the vapor phase. It means that if we take a liquid in a closed container, then the molecule which evaporates will collide with the container wall and comes back to the liquid surface, due to which a vapor pressure is created. From the vapor phase strikes the liquid surface and are retained in the liquid phase. It gives rise to the constant vapor pressure between equilibrium. So what is the cause? It gives rise to constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals to the number of returning to liquid from the vapor. So what is the condition? What we understand here that कि अगर मान लीजिए हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं, तो एक क्लोज कंटेनर में हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं. सो आफ्टर बॉइलिंग इट व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ क्लोज कंटेनर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लोज कंटेनर में ही किया जाता है. तो जो मॉलिक्यूल है वो उस वॉल से टकराएंगे क्लोज कंटेनर के और वापस लिक्विड सरफेस के पास आ जाएंगे. सो वी कैन से दैट द सिस्टम हैज़ रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट एट दिस स्टेज बिकॉज ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. वो मॉलिक्यूल गया, टकराया, वापस आया, वो एस्केप नहीं हो पाया उसमें. तो दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो क्या हुआ, वापस से वो जो वाटर था, वो जो वेपराइज होके गया था, वो वापस से लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो उसी कंटेनर के अंदर में रह गया वो. हाउएवर दिस इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर फेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? यहाँ स्टैटिक का मतलब सिंपल है. स्टैटिक का मतलब ये है कि भाई हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और क्लियरली उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने के लिए हमको उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इस चैप्टर में डील करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो जो हम अभी बात कर रहे थे वाटर वेपर की, वो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. सो नाउ स्टूडेंट लुक हियर. however thus at equilibrium the rate of evaporation is equals to the rate of condensation. Now student, this is a very important point. जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, जैसे कि हमने क्लोज कंटेनर में वाटर को बॉयल करने की या लिक्विड को बॉयल करने की बात की, तो इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ, जितनी रेट से इवापोरेशन होगा उतने ही रेट से कंडेंसेशन होगा एट इक्विलिब्रियम. तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं H2O लिक्विड एंड H2O वेपर के बीच में, ये रिएक्शन हमको ये बता रहा है कि भाई H2O लिक्विड है और RHS में H2O वेपर है. LHS यानी रिएक्टेंट, RHS यानी प्रोडक्ट. बीच में रिवर्सिबल साइन यहाँ पर बना हुआ है. द डबल हाफ एरो इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस in both the direction are going on simultaneously. The mixture of reactant and product in the equilibrium state is called an equilibrium mixture. Now
While looking this H2O liquid reversible H2O vapor, we can clearly understand this is a physical equilibrium. Just अभी मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल, केमिकल और आयोनिक. उनमें से ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में लेफ्ट और राइट हैंड साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कभी चेंज नहीं होता. जैसे यहाँ H2O लिक्विड लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में H2O वेपर लिखा हुआ है, तो देखो दोनों तरफ H2O लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि एक तरफ H2O लिखा है दूसरी तरफ अमोनिया लिखा है. कोई केमिकल का चेंज नहीं है, बट चेंज किसका है? स्टेट का चेंज है. लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड है, राइट हैंड साइड में वेपर है. तो ये जो स्टेट का जो चेंज है, इसके कारण से स्टूडेंट्स इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मॉलिक्यूल का चेंज नहीं है. नाउ द डबल एरो इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस इज बोथ डायरेक्शन आर गोइंग साइमल्टेनियसली. दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस जा रहा है. द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर. इसको इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल सकते हैं. नाउ इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ द फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शंस. द रिएक्शन may be fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of the reactant. Now students, all reactions are not going at the same rate. Different reactions have different types of equilibrium. For example, if we talk about the formation of ammonia, if we talk about the formation of hydrochlorine chloride, if we talk about the formation of hydrogen iodide, there are different types of reactions have different types of equilibrium. Okay students, now when the reactant in a closed vessel at a particular temperature reacts to give product, the concentration of the reactants keep on decreasing while those of the product keep on increasing for sometimes, after which there is no change in the concentration of either of the reactant or product. This stage system is called dynamic equilibrium. Now student, understand this sentence. What is the meaning of this sentence? First of all, remember that इक्विलिब्रियम कभी भी क्लोज कंटेनर में ही स्टैब्लिश हो सकता है. इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए क्लोज कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है. कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता. इस पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आयोनिक हो. स्टूडेंट, फिजिकल, केमिकल और आयोनिक के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझो. फिजिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, केवल फेस चेंज होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, फेस चेंज भी पॉसिबल है. और आयनिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आयंस होते हैं. प्रोडक्ट साइड में आयंस होते हैं, रिएक्टेंट साइड में आपका एक पर्टिकुलर एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है. नाउ स्टूडेंट, जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हम एक्वस सॉल्यूशन में उसको करते हैं. जब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है तो कोई एक्वस सॉल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स मे बी प्रेजेंट. एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम तो एक जस्ट ऐसा इक्विलिब्रियम है जो कि हम फिजिकली देख सकते हैं. उसमें कोई केमिकल प्रोसेस का चेंज नहीं होता, उसमें जस्ट स्टेट का चेंज होता है. नाउ स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आ रही है वो ये है कि जब कोई रिएक्शन होता है, व्हेन द रिएक्टेंट इन क्लोज्ड वेसल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब कोई रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग बोल रहा है. देखो स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट आप समझ रहे हैं जो एलएचएस में होता है. जब रिएक्शन शुरू होता है उसके पास खुद की कोई कंसंट्रेशन होती है. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है प्रोडक्ट की तरफ, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, वाइल दोज ऑफ द प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम्स, आफ्टर विच देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. एक समय ऐसा आता है, देखो क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो आपको लगेगा कि थोड़ा देर इधर से डिक्रीज उधर से इंक्रीज, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है. एक स्टेज ऐसा आता है, दिस स्टेज ऑफ द सिस्टम इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट. एक से ऐसा आता है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाती है. उस स्टेज को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. द स्टेज ऑफ द सिस्टम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द रेट ऑफ द फॉरवर्ड and the backward, that is reverse reaction, becomes equal. Student, this is very important point. Rate of forward and backward reaction equal. And what is the meaning of dynamic equilibrium? The stage of the system in the dynamic equilibrium. Understand the meaning of dynamic. Dynamic का मतलब स्टूडेंट होता है जो प्रोसेस कभी रुकता नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहता है. यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट. स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है, ध्यान रखना. इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है नॉन स्टॉपिंग प्रोसेस, जो लगातार चलते रहता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट. और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है उस समय
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होता है। रिमेंबर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का वो इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट, इट इज़ ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज that there is a no change in the concentration of various species in the reaction mixture based on the extent to which the reaction proceeds in reach the equilibrium. Now students, we are talking about the classified three groups. The reaction that proceeds nearly to completion and only negligible concentration of the reactant are left. In some cases it may not be even possible to detect the experimentally. Students remember, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि तो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है नियरली टू कंप्लीशन, ठीक है, ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। इट मीन्स दैट एक रिएक्शन जब होता है तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट बहुत सारा कंज्यूम हो गया रहता है और प्रोडक्ट बन जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से, द रिएक्शन इज विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम होता है और रिएक्टेंट जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहता है वहाँ पर। और ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग, द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट भी जितना है उतना ही वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिएक्टेंट। यानी 3 कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टूडेंट्स अभी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आयनिक में हम पहुँचे नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स, तो 3 प्रकार की कंडीशंस हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लेके, कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बन चुका है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट बहुत बचा हुआ है, प्रोडक्ट बहुत कम बना है, फॉर्मेशन प्रोडक्ट का बहुत कम हुआ है और रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अनचेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और तीसरा ये कंडीशन हो सकता है कि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट जो है वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल मीन्स दोनों लगभग क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है। तो ये तीनों कंडीशंस हो सकती है। अभी स्टूडेंट्स मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 3 पॉइंट्स कभी भी नहीं आते, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब जस्ट दोनों का रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The extent of the reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of the reactant, temperature, etc. Students, whenever a reaction proceeds, we know that the conditions around the reaction, suppose we have taken a test tube and if we give the temperature from the burner, obviously the reaction will get affected. Surely the reaction will get affected. What affects the reaction? The environmental according to the test tube, the temperature near about it, and the concentration of reactant. Yes, it is obvious what concentration we are taking is a very important aspect. Optimization of the operational conditions is very important in industrial laboratory. Oh, students, this equilibrium process is used in laboratory and also in industry. I will give you one example. The ammonia formation of ammonia, जो फैक्ट्रीज अमोनिया फॉर्मेशन करती है वहाँ पर ये हैबर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हैबर्स प्रोसेस बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम का ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि ऑप्टिमिज्म ऑफ द ऑपरेशनल कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी, सो द इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड chemical process are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in the aqueous solution which is called ionic equilibrium. Student, रिमेंबर दैट जहाँ जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होगी तो आप ध्यान रखेंगे, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर चुका हूँ कि केमिकल की बात होगी तो एक्वस ज़रूरी नहीं होता, और जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होगी तो फिर वहाँ पर आपको एक्वस ध्यान रखेंगे। एक्वस मतलब पानी लीजिए, वाटर में आप ऐड करिए, एसिड वाटर में ऐड करिए, बेस वाटर में ऐड करिए, सॉल्ट जैसे एसिड CH3COOH आपने ऐड किया तो वहाँ पर CH3COO माइनस और H+ मिलेगा। एक्वस में आपने वहाँ पर बेस ऐड किया NaOH तो वहाँ पर Na+OH मिलेगा। आपने कोई सॉल्ट ऐड किया तो वहाँ पर आपको 2 आयंस मिलेंगे। तो वो एक्वस में जब होगा तो आयनिक ही होगा, और केमिकल ज़रूरी नहीं है कि एक्वस में हो, वो किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट में हो सकता है। स्टूडेंट देखिए एक बात ध्यान रखिए, बुकिश जो NCERT फॉर्म है उसको लाइन टू लाइन रीड करना अलग चीज़ होता है, बट चीज़ों को समझना अलग चीज़ होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसको समझिए, पॉइंट को समझिए, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस,
स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रोसेस अभी मैं बता रहा था आपको कि इक्विलिब्रियम 3 कंडीशन में होता है, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड इफ वी एग्जामाइन सम फिजिकल प्रोसेस। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल आर फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, इसको आप ऐसे समझिए कि सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब वाटर। फिर सेकंड पॉइंट लिक्विड, आप रिवर्सिबल साइन देख सकते हैं बीच में, लिक्विड मतलब वाटर, गैस मतलब वेपर समझिए। फिर सॉलिड मतलब, देखिए एक एग्जांपल समझिए सॉलिड से लिक्विड वाला, यानी आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो आप बोल सकते हो कि आइस और वाटर के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है जहाँ पर आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस की जब स्टूडेंट बात होती है तो लिक्विड टू गैस भी आप वाटर के एग्जांपल ले लो। वाटर जब गैस इवापोरेट हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आता है। ओके, और सॉलिड टू गैस के लिए आप कैम्फर का एग्जांपल ले सकते हो। सॉलिड कैम्फर, कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, उसको डायरेक्टली आप बर्न करो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भी इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। आइस और सॉलिड के बीच में तो होता ही है। तीन जो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस है, जो आप 3 एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है, आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इट्स डन।